Amid growing speculation over the fractionalism within the Punjab Congress, a crucial political meeting is currently underway at the Chandigarh residence of senior MLA Rana Gurjeet Singh. Several senior Congress leaders considered close to former Chief Minister Charanjit Singh Channi have gathered for discussions with the Punjab Congress in charge and senior party leader Bhupesh Baghel along with Channi himself. The meeting has brought together a select group of senior leaders for direct talks with Bhupesh Baghel. Those present include former Chief Minister Charanjit Singh Channi, former Deputy Chief Minister and Gurudaspur MP Sukhjinder Singh Randhawa, former Minister and senior MLA Rana Gurjeet Singh, former Minister and MLA Pragat Singh, former Minister and MLA Tript Randhir Singh Bajwa and former Minister and MLA Bharat Bhushan Ashu. The high-level meeting comes just 3 days after Bhupesh Baghel ruled out any immediate change in the Punjab Congress leadership. Baghel had maintained that the party high command has no plans at present to replace Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Waring. Sources suggest that Baghel may also hold an open house interaction with the leaders supporting the Channi Randhawa camp. Leader of opposition in the Punjab Assembly and senior Congress leader Pratap Singh Bajwa is expected to play the role of mediator during this session. Before Bhupesh Baghel's arrival, leaders from the Channi Randhawa faction reportedly held a separate meeting where they discussed the party's future strategy and leadership roadmap in Punjab. Sources indicate that faction conveyed that if the High Command decides to continue with Amrinder Singh Waring as Punjab Congress President, then Charanjit Singh Channi should be projected as the party's chief ministerial face. These developments come at a time when internal discussions over leadership roles and the Congress's electoral strategy in Punjab have intensified. The party leadership now faces the challenge of maintaining internal balance while preparing its roadmap for the upcoming assembly polls scheduled next year. Listen into what Randhawa had to say. मीटिंग तो पहले बोलने का कोई मतलब नहीं। ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। राजा वड़िंग क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? नहीं, जो उनको पता होगा बघेल साहब को। आप चाहते हैं कि राजा वड़िंग आ जाए इस मीटिंग में जाए? आप चाहते हैं कि राजा वड़िंग ज्वाइन कर ले? नहीं, राजा वड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। नाराजगी है आपकी नाराजगी है। वो कहता है कि मेरे रंधावा साहब से कोई नाराजगी नहीं है, वो तो कह रहे हैं। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि कांग्रेस का कोई कल्चर नहीं है। कांग्रेस का कल्चर कुर्सी का कल्चर, जहाँ लड़ाई है वो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। लेकिन इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कांग्रेस को। यहाँ पे सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं सीएम की, तो सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा और बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो हमारी सिलेक्शन होती है किसी को कोई पता नहीं आज तक कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो चीफ मिनिस्टर जो बनेगा कांग्रेस की कोई पंजाब के जो गल कर रहे हैं हम अभी बात पंजाब में चीफ मिनिस्टर की अभी लड़ाई की है, ये कांग्रेस की लड़ाई है। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये कुर्सी की लड़ाई है। बघेल साहब 5 दफा आए 10 दफा आए, कोई फैसला नहीं होगा। इनमें लड़ाई गुटों में बंटे हुए हैं, ये गुटों में बंटे रहेंगे। Joining me on the broadcast is my colleague Mohit Malhotra. मोहित, पंजाब कांग्रेस के बीच में ये जो इनफाइटिंग चल रही है चुनाव से पहले, तो क्या ये एक यूनिटी मीटिंग है या एक पावर स्ट्रगल है? देखिए, पावर स्ट्रगल ही लग रहा है। अगर आप पूरा का पूरा सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ जो पूरा फ्रैक्शन ऑफ लीडर्स चल रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि या तो एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पिछला इलेक्शन हार गए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अब उनको टिकट नहीं मिल सकता, या फिर वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गुड बुक्स पे नहीं है। उनको लगता है कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही स्टेट कांग्रेस चीफ रहे तो उनको टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से उनको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि इस वक्त पूरा रिवोल्ट किए हुए हैं, पूरा फ्लैग उन्होंने उठा रखा है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ऑफ लीडर्स है वो इनके साथ चल रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बना दिया जाएगा। अगर वो सीएम फेस बनते हैं तो जो टिकट्स बांटे जाएंगे उसमें भी ऐसे ही लोगों को तरजीह दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो की मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। ये राणा गुरजीत का घर है
जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं। करीब 5 बार वो एमएलए रह चुके हैं। उनका ये घर है, उसके अंदर ये पूरी मीटिंग हो रही है। और मीटिंग के लिए जो चन्नी रंधावा का जो पूरा का पूरा कैंप है, उससे जुड़े काफ़ी लीडर्स अंदर मौजूद हैं। अभी मीटिंग चल रही है। भूपेश बघेल ने हालांकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही यानी 2:45 पर उनकी फ़्लाइट है रायपुर के लिए। तो 2:45 पर उन्होंने निकलना है, तो बहुत ही कम वक्त बचा है। ऐसे में जितने लीडर्स अंदर मौजूद हैं, करीब 70 to 80 लीडर्स हैं अंदर, जो कि चन्नी और रंधावा कैंप से जुड़े हैं। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन 6 ही लीडर्स को ऑथराइज़ किया गया है, जिसमें मेनली सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं और चरणजीत सिंह चन्नी हैं, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा हैं, भारत भूषण आशु हैं और राणा गुरजीत खुद, जो कि इस पूरी मीटिंग को मॉडरेट कर रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। उनकी बात सुनी जाएगी। ये जो पूरा आप देखिए, ये जो एक आपको टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये पूरी मीटिंग चल रही है और अंदर सभी कांग्रेस के लीडर्स के साथ एक ओपन हाउस भी भूपेश बघेल कर रहे हैं। लेकिन टाइम, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि बहुत ही कम बचा है, क्योंकि 2:45 पर यानी अब से करीब 1 hour 30 minutes के बाद उनकी फ़्लाइट है चंडीगढ़ से। तो उनको अगर यहाँ से निकलना है तो कैसे इतने सारे लीडर्स की बात को वो सुनेंगे। और अंदर से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक वही जो 2 डिमांड्स हैं चन्नी कैंप की, रंधावा कैंप की, कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को स्टेट कांग्रेस चीफ की कुर्सी से हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं पार्टी कर सकती तो चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। उनकी ही लीडरशिप में उनको ही सीएम फेस बताकर कांग्रेस पंजाब में चुनाव में उतरे। क्योंकि ये सभी लीडर्स जो अभी 70 to 80 लीडर्स अंदर मौजूद हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस को लीड करने नहीं दिया जाएगा, उनको सीएम फेस या फिर पंजाब स्टेट कांग्रेस चीफ की का जो डेजिग्नेशन है वो नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है। तो बिल्कुल अभी मीटिंग चल रही है, लेकिन भूपेश बघेल ने भी साफ किया है कि जो दोनों ही डिमांड्स हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बना दिया जाए या फिर स्टेट कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को उनके डेजिग्नेशन से हटा दिया जाए और उनकी जगह चन्नी को लगा दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और ये अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस हाईकमान ही कर सकता है। तो पूरा मैटर अब ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली की ओर जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान, जिसमें राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, ये पूरी लीडरशिप मिलकर ही शायद अब इस पूरा जो इन फाइटिंग चल रही है उसको सुलझा सकती है। Well, thank you, Mohit, for joining us. And it remains to be seen if factionalism is hurting Congress's Punjab poll strategy.